Hello students, काजल मिस बैक विथ यू विथ वन मोर टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. नाम सुन के डर मत जाना. दिस टॉपिक एज इट साउंड्स बहुत टफ लगता है, लेकिन इट इज़ वेरी इजी. सी इट थ्रू माई विजन. माई वर्क इज़ टू मेक योर टास्क ईजी. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम. पूरा एंड तक वीडियो देखना, सारी चीज़ समझ लेना. बहुत ही रिवॉर्डिंग टॉपिक है ये, तुमको बहुत मार्क्स मिलेंगे इसमें. And I'll tell you the easiest way to do it. Okay, now direct and inverse variation is what? Direct and inverse variation is about two things, how they are related. यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा, डायरेक्ट वेरिएशन. ऑपोजिट में एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दैट वुड बी इनवर्स वेरिएशन. I'll tell you, I'll make things clear. Please like, share, subscribe to my video. Next is, see, if I say 15 dolls, come on. Here the top example is given upon dolls. 15 dolls cost rupees 234 rupees. For example, if I am a vyapari, if I am a shopkeeper and I am buying 15 dolls for 234 rupees, and if sale हो गया and I want to buy 35 more dolls, how much will it cost? Same price. ऐसा नहीं है बिक गया तो ज़्यादा भाव में, the same price. 15 डॉल 234 रुपीज़ के, तो 35 डॉल्स कितने के? सी देयर आर वेरियस वेज टू डू इट. व्हाट पीपल डू इज़ इसको पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे. 2 स्टेप. आई विल मेक इट शॉर्टकट. ओके, नाउ अगर 15 डॉल्स 234 रुपीज़ की हैं, यू हैव टू इमेजिन 35 डॉल्स का प्राइस मोर होगा कि कम होगा? डेफिनेटली इट विल बी मोर. दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन प्रॉब्लम. इट इज़ डायरेक्टली related. 15 डॉल का 234, 35 डॉल्स का, ऑफ कोर्स इट वुड बी मोर, बट हाउ मच मोर? लुक हियर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे लिखना है. अपॉन, ये अकेला रह गया ना, उसको नीचे फेंक दो. ठीक है, सी दिस इज द मेथड. ऑपोजिट में जिनकी जोड़ी बनती है ऊपर लिखो, जो अकेला बच जाता है ना, इसकी जोड़ी नहीं बनती है बिकॉज ये इसकी चली गई. एक्स मीन्स गॉन. यू हैव टू फाइंड. ओके, ढूंढ के लेके आनी है, तो अकेले को नीचे फेंक दो, ये ऊपर दो जोड़ीदारों को रखो. नाउ ट्राई टू रिड्यूस दिस. 35 and 15 is reducible now with 5. 5 3 times, 5 7 times. Now is 3 and 234 reducible? Very much. See, 3 1s are 3 7s are 21, 2 बच गया, 3 8s are 24. The answer is 78 into 7, मतलब कितना? 546, not 56, 546. 7 7s are 49. हाँ. So these 35 dolls will cost rupees 546. Followed. डायरेक्ट वेरिएशन का एक प्रॉब्लम समझ में आया? Should I give you one more problem of direct variation, or I'll teach you the inverse variation? I'll give you one more problem to make things better. This method is called as a unitary method. See, I have mentioned here, this method is called as a unitary method, and unitary method is applicable not only for variations पर बहुत ज़्यादा दूसरे sums में भी काम आएगा. For example, if we have say if the weight of 65 tea packets is 26 kgs, weight and packets. Okay, if the weight of how many packets? 25 tea packets. Here it is given if the weight of 65 tea packets is 26 kgs. 65 tea packets is 26 kgs. Okay, I'll write here in kgs एक साथ. Okay, so what is the weight of 25 such packets? Now listen children, 65 packets, 26 kgs. 25 packets, obviously it will be less. एक ये कम हुआ तो ये भी कम ही होगा ना. Try and apply your logic. So this is a direct variation. Opposite में किसकी जोड़ी बनती है? इसकी. ये इसकी x चली गई. This will be thrown down. 26 into 25 upon 65. ठीक है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं है. ओके, सो इट विल बी थ्रोन डाउन. कम ऑन, हाउ विल यू डू दिस? 26 and 65, is it divisible in a common table? Yes. 13 2s are 13,
5s are again 5 1s are 5 5s are 25 10 kg only. So the weight of 25 packets is 10 kgs. I think children this much is good with you, clear with you. अभी एक प्रॉब्लम इन्वर्स वेरिएशन का भी बताती हूँ तुमको, ठीक है. Inverse variation mostly comes when it is men in work. Okay, if 36 workers, see there are men, how many? 36, and they take how much days? 12 days to build one wall. Okay, one wall, two wall, ये जो भी काम रहता है, don't get confused, don't go by that data. कुछ तो एक काम कर रहे हैं and they are doing it in 12 days. How many days will it take for 16 workers to do the same job? Now children, look. 36 लोग 12 दिन में काम कर रहे हैं. ओके, 20 लोग छुट्टी पे चले गए, 16 लोग बचे हैं, तो क्या होगा? दिन बढ़ेंगे कि कम होंगे? इफ दिस इज डिक्रीजिंग, दिस विल इंक्रीज और डिक्रीज. अप्लाई योर लॉजिक. दिस इज नॉट ईटिंग, खाने का काम नहीं है ये काम करने का काम है. दे आर डूइंग वर्क. ओके, सो अगर आदमी कम पड़ गए ना तो दिन बढ़ जाएंगे. देखो, हमको जल्दी काम कराना होता है तो ज़्यादा लोग काम पे लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे लोग कम हो गए तो डेज विल इंक्रीज. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वर्स वेरिएशन. तुमको पहले क्वेश्चन को देखना है, उस पर लॉजिक अप्लाई करना है और फिर डिसाइड करना है यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई करें. इन्वर्स वेरिएशन में क्या करना है? मल्टीप्लाई दीज बोथ, आमने सामने, ऑपोजिट की जोड़ी नहीं, आमने सामने की जोड़ी. और इसमें ये अकेला हो गया, उसको फेंक दो नीचे. आई थिंक दिस मच इज गुड विथ यू. नाउ लुक, 16 and 12 are they divisible? Yes, in 4 3 times, 4 4 times. 36 and 4, yes, 1 and 9. 27 days लगेंगे. I think clear है this much. This is the basis of inverse variation and direct variation as I taught you. If you want, I can go ahead with the advanced sums of these. प्लीज़ कमेंट, लेट मी नो आपको मेरे एडवांस सम्स चाहिए. आई कैन ऑल्सो लाइव स्ट्रीम ऑन दिस, आपको मैं सामने भी सिखा सकती हूँ. जस्ट कमेंट एंड कीप यूट्यूबिंग, कीप लर्निंग. दैट्स इट फॉर टुडे.